Hello everyone, a very good morning and namaste. ભાવનગર વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે ના નિમિત્તે આજે અમે લોકો એક સરસ મજાનો સેમિનાર ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે જે ભાવનગર હેરિટેજ પ્રિઝર્વેશન સોસાયટી દ્વારા પોસિબલ બન્યું છે. So first of all, congratulations to everybody for being with us to celebrate this wonderful World Heritage Day. વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે એક એવી સરસ ધરોહર છે કે જે આપણા પૂર્વજોએ આપણને આપી છે અને આપણે આ ધરોહરને આગળ લઈ જવાની છે. તો શું આનાથી વધારે સારો દિવસ હોઈ શકે આપણી પાસે જ્યારે આખું વિશ્વ આ ધરોહર દિવસ સેલિબ્રેટ કરી રહ્યું છે. ભાવનગરની પોતાની એક સંસ્કૃતિ છે, ભાવનગરનો પોતાનો એક ઇતિહાસ છે જે ખૂબ જ સરસ છે અને આ વર્લ્ડ હેરિટેજ ડેના નિમિત્તે આજે બહુ જ સરસ વાતો હું આપની સાથે શેર કરવાની છું. પણ બિફોર કે હું આ પ્રેઝન્ટેશન આપણી સમક્ષ મૂકું એના પહેલા થોડી ઘણી વાતો જે મારા મનની છે એ આજે મારે તમારી સાથે શેર કરવી છે. ભાવનગર એક એવું સિટી છે જ્યારે આપણે બીજા બધા સિટીઝ ના આપણા કઝિન્સ હોય કે આપણા રિલેટિવ્સ હોય તો એ લોકો સાથે જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ તો મેં ઘણી બધી વાર એવું માર્ક કર્યું છે કે ભાવનગરીઝને એવું ફીલ થાય કે અમે બહુ નાની સિટીમાંથી આવીએ છીએ. વચ્ચે એક એવો દોર પણ આવ્યો હતો કે જ્યારે ભાવનગર છોડી અને બધા મોટી સિટીઝમાં મેટ્રો સિટીઝમાં જવા લાગ્યા હતા. ઘણું બધું માઇગ્રેશન થયું હતું. આ શું કામ થયું એ પ્રશ્ન મને હંમેશા મૂંઝવતો હતો કારણ કે ભાવનગરનો ઇતિહાસ એટલો ગૌરવપૂર્ણ છે પણ ભાવનગરને આપણે જાણી જ નથી શકતા. આ વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે નિમિત્તે જે ભાવનગર પ્રેઝર્વેશન સોસાયટી છે જે આ હેરિટેજને પ્રિઝર્વ કરવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. બ્રિજેશ્વરી કુમારી સાહેબા જે છે એમને ઘણો સરસ એફર્ટ લીધો છે કારણ કે આપણી પાસે એટલી સરસ વસ્તુઓ છે કે આજે એ વસ્તુઓને આપણે જાણતા જ નથી. જ્યારે આપણા રિલેટિવ્સ બહારગામથી અહીંયા આવે તો એમ કે ભાવનગરમાં ફરવા જેવું શું છે અને આપણે જ ભાવનગરી તરીકે એમ કહીએ ભાવનગરમાં કશું જ નથી ફરવા જેવું. પણ આજે જ્યારે હું આ રિસર્ચ કરતી હતી આ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા માટે ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાવનગરમાં કેટલી એવી જગ્યાઓ છે, કેટલી એવી વસ્તુ છે કે જે આપણને ખબર જ નથી. એટલે આ જે પ્રેઝન્ટેશન મેં બનાવ્યું છે ખાસ એટલા માટે કે જે યંગસ્ટર્સ છે, જે તમે બધા સ્ટુડન્ટ્સ છો, જે ભાવનગરને લીડ કરવાના છે, એ બધાને ખ્યાલ રહે કે ભાવનગર પાસે કેટલી સરસ વસ્તુઓ છે. ફ્યુચરને આજે જો આપણે સરસ બનાવવું હોય તો ડેફિનેટલી આપણે પાસ્ટને ઓળખવું જરૂરી છે. એટલે વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે નિમિત્તે ભાવનગર હેરિટેજ પ્રિઝર્વેશન સોસાયટી સરસ 2 દિવસનું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે. ઘણા બધા events કરવાના છે જેમાં યંગસ્ટર્સ એટલો સરસ રીતે પાર્ટ લઈ રહ્યા છે કે મને ખૂબ જ ખુશી છે. ગઈકાલે અમે લોકો એક એલિક્યુશન કોમ્પિટિશનનો સેમિફાઇનલ રાઉન્ડ કર્યો અને 70+ પાર્ટિસિપન્ટ એમાં જોડાયા અને મને ખૂબ ખુશી થઈ કે 6th સ્ટેન્ડર્ડ 7th સ્ટેન્ડર્ડ 8th સ્ટેન્ડર્ડના છોકરાઓ ભાવનગર હેરિટેજ વિશે વાતો કરતા હતા. આજે તમે જ બધા છો જે આ વર્ડને આગળ લઈ જવાના છે કે ભાવનગરની જે ધરોહર છે, ભાવનગરની જે હેરિટેજ છે એને આપણે શું કામ પ્રિઝર્વ કરવી જોઈએ. ભાવનગરથી દૂર જઈ અને બીજી જગ્યાએ વસી અને આપણે એમ ટીકા ટિપ્પણ કરીએ કે ભાવનગરમાં કાંઈ જ નથી તો મારો એક જ સવાલ છે, આપણે શું કર્યું આ ભાવનગરને ભાવનગર બનાવવા માટે? આપણે શું કર્યું આ ભાવનગરને સ્તર જે છે તેને ઊંચું લાવવા માટે? આપણા પૂર્વજોએ ખૂબ મહેનત કરી આટલું સરસ શહેર આપણને આપવા માટે, પણ આપણે કમ્પ્લેન કરી બીજી સિટીઝમાં જતા રહ્યા. એટલે મારું નિવેદન છે, મારી રિક્વેસ્ટ છે અને આ હમ્બલી અપીલ કે જેટલા ભાવનગરના નાગરિક છે, પ્લીઝ raise awareness about ભાવનગર. Be positive about ભાવનગર because ભાવનગર પાસે એટલું બધું વસ્તુઓ છે કે તમે વિચાર નહીં કરી શકો. ભાવનગર has beautiful amalgamation of beautiful heritage, culture, values and everything. એટલે I request all the students that it's our duty, our responsibility to take our culture, our heritage with pride. The theme of today's celebration is our heritage, our pride. This city is really beautiful. I am not born in this city, but since grade 8, I have been shifted because my parents moved from Bombay to Bhavnagar. And since then, I am living in Bhavnagar. But believe me, when I go to another city, even today, I feel that Bhavnagar is so calm and composed. Because when you go to metro cities, you feel such a lot of hustle, bustle. Growth is there definitely, but
to enjoy life. City like Bhavnagar gives you that opportunity. Social, social interaction with people. I think that is the best. People of Bhavnagar are rooted to culture. People of Bhavnagar are rooted to its heritage, and you children are responsible now to take this movement ahead. So today I'm going to share a few important things about Bhavnagar, and whatever I share today is going to be a learning lesson for every one of us. And let's start talking about it. Because when we move in Bhavnagar, most of the people tell us that there are only circles in Bhavnagar. There is nothing much to watch. But when I will share some important things here, you will come to know that, oh my God, Bhavnagar is so rich in terms of tourism. Why we have not explored these places? Why we have not been to these places, and why we do not take pride to visit those places, to click pictures on and put them on social media and talk about Bhavnagar? Because Bhavnagar is such a city, such a place which was planned long back. So today, let me take you through that entire journey of Bhavnagar, starting from Sir Shri Takht Singh Ji. So this presentation is going to be wonderful, a kind of a training session. If you want to take pictures, definitely you can click pictures from the presentation that I shared. And if you have any questions, please put them in the comment section box. Yes, somebody is mentioning to talk in English. Why I started in Gujarati is because Bhavnagar is a region which is in Gujarat, and Gujarat and the language Gujarati is our pride. So I started, but I will make sure that I speak in Gujarati, in Hindi, and English, all mixed languages. So allow me to share my screen, and here we go. Yes. This is the beautiful city of Bhavnagar, where you can see today's modernized culture as well. So Bhavnagar is a amalgamation of urban and old heritage things. So this city of Bhavnagar was founded by Maharaja Bhausiji I Gohil in 1723. This city was named behind him, Bhausiji Bhavnagar, and it is also called as Bhavenani Nagari. Bhavena means bhav, the feelings, the sentiment, the affection. So this name itself tells so much. So Bhavnagar is all about feelings, is all about sentiments. Bhavnagar is a city situated in Gujarat in India. And believe me, I really feel very proud when I tell somebody that I live in Bhavnagar. It's a business and trade boosting place wherein there are a lot of opportunities for business, there are a lot of opportunities for culture and heritage exploration. Bhavnagar has a rich culture. When we go through this presentation, हम सबको पता चलेगा कि भावनगर में कितना रिच है जो हम जानते ही नहीं है. भावनगर का जो रिच कल्चर है उसको हम जानते ही नहीं है. तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ बेयर कीजिए कि हम आज इतना अच्छा प्रेजेंटेशन की टूर लेने वाले हैं वर्चुअली. And this all has become possible because of the Bhavnagar Heritage and Preservation Society. The Gohil dynasty has traced the roots of the Suryavanshi Rajputs of Udaipur in Mewar, having bifurcated in 1260 AD. So since then, the Gohil dynasty took over Bhavnagar, and then Bhavsiji I established this city of Bhavnagar. Bhavsiji Gohil shifted the capital and established the kingdom of Bhavnagar in AD 1723. So this Bhavnagar was established and formed in the year 1783. The city had twin advantages. Beautiful. This is the first important point when we look at Bhavnagar with positivity. It has twin advantages of the sea being the defensive measure as well as the hub for maritime trade. Because when we look at business, any city, when it has to grow, it needs business opportunities. Only then a city can grow, a city can flourish. So Bhavnagar has a beautiful maritime trade opportunity as well, because we have lovely covering sea around Bhavnagar. The port of Bhavnagar is a natural harbor and is surrounded with picturesque beauty.
When you go to see and explore this beauty of Bhavnagar, you will come to know that the Bhavnagar कितना सुंदर है, उसका सराउंडिंग कितना ब्यूटीफुल है, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब जो भावनगर की ब्यूटी है इसको इन्हांस करते हैं और दिखाते हैं कि भावनगर कल्चरली कितना रिच है. Bhavnagar is known as the cultural capital of Saurashtra. When we talk about the Saurashtra region of Gujarat, in the southern Gujarat, you will come to know that Bhavnagar is topped. सब जगह पर जब कल्चर की बात आती है, जब हेरिटेज की बात आती है, भावनगर को एक कला नगरी के तौर से जाना जाता है पूरे सौराष्ट्र में. भावनगर का जब नाम आता है, जब हम ये कहते हैं कि हम भावनगरी है, तो कला नगरी का नाम हमारे साथ जुड़ जाता है. सो आई थिंक we carry this legacy of our culture, our heritage, and I think it's a matter of pride when we belong to this city, which is known as the Kala Nagari. At present, the erstwhile royal family is proactive in functioning two heritage hotels, one beach resort, three schools, and a temple trust. So this royal family who lives at Neelambag Palace takes care of these Bhavnagar proactive properties. Let me take you to the history now. I'm sure this history is going to be very, very turning point for everybody's life because to, as I said earlier, to build a strong future, we have to know our past. And our Bhavnagar kings who were in the past had a very long, wide vision. बिकॉज भावनगर को भावनगर बनाने के लिए एक दूरदृष्टि की बहुत जरूरत थी. और ये जो हमारे सब राजा हैं, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है हर एक स्तर में. जब भी उनका शासन काल था उस दरमियान उन्होंने भावनगर को डेवलप करने के लिए बहुत योगदान दिया. अब ये हमारी बारी है बिकॉज नाउ it's a democratic city. So we have to be responsible to whatever we contribute as Bhavnagar. So I chose to speak to all the students because आज अगर बच्चे भावनगर के इतिहास को प्राइड से नहीं कहेंगे तो वो भावनगर को प्राइड से नहीं देखेंगे. So it's very important, children, to respect what our ancestors, what our kings have given to us, and take it forward and contribute in whatever way we can. Maharaja Rawal, Shri Takht Singh Ji. I'll start with him. Maharaja Rawal, Shri Sir Shri Takht Singh Ji Jaswant Ji was Maharaja of Bhavnagar, a Rajput chief of the Govil clan and a ruler of Bhavnagar state in Kathiawar. What a pride, what a pride. And we know a lot of places in Bhavnagar which are named behind him. We have a certain hospital behind his name, Sir Takht Singh Ji Hospital. We have Temple Takhteshwar, which was built by him. So these are beautiful places and beautiful contributions that these rulers, these kings have given to Bhavnagar. He succeeded to the throne of Bhavnagar upon the death of his father Jaswant Singh Ji in 1870. Sir Takht Singh Ji, I bow down to him because he has contributed a lot to make Bhavnagar what Bhavnagar is today. And I request everybody, all the students, कि ये जो पिक्चर्स हैं हमारे राजा महाराजा के, इसका आप एक कोलैज बना सकते हो, एक स्क्रैप बुक बना सकते हो, एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, कोई टॉक शो अरेंज कर सकते हो. इनको जानिए, इनको पहचानिए और इनको आगे ले जाइए. मेरा पूरा फोकस इसी पे है to awaken you all and give you all opportunities wherein you can take this further. आप बहुत अच्छे 6 ऑनवर्ड्स के जो बच्चे हैं, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड. आप सब एक कंपटीशन अरेंज करिए अपने ग्रुप में ही. अगर आप 10-12 बच्चे हैं तो टेक अ डे wherein you all research about one of the kings of Bhavnagar. वो दिन रखिए कि आप सब रिसर्च करें और आप सब अपना रिसर्च शेयर करें. आई थिंक ऐसे ही हम भावनगर की जो हेरिटेज है उसको आगे ले जा पाएंगे. So all is available on Google, all is available on Wikipedia. So वो सब रिसर्च करके बुक्स भी हैं लाइब्रेरीज में. इफ यू गो टू वाटन लाइब्रेरी आपको बहुत अच्छी किताबें मिलेंगी. इनके ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और इसकी जो रिसर्च जब आप करेंगे ना, यू विल फील दैट प्राइड. और जब आपको वो प्राइड मिलेगा तब आप उस प्राइड को बहुत 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 गर्व से दूसरों के सामने प्रेजेंट भी कर पाएंगे.
ही वॉज द फर्स्ट pupil of राजकुमार कॉलेज, राजकोट में जो एक बोर्डिंग स्कूल है RKC, उनके वो फर्स्ट स्टूडेंट थे सर तख्त सिंह जी। And Takht Singh Ji attended the Delhi Darbar in 1877 and was granted a personal gun salute of 13 guns. My God, what a respect! 13 guns का जो salute है वो बहुत respectable लोगों को मिलता है। तो wow, it's pride, you know, it's a matter of pride कि हमारे राजाओं को ये सम्मान मिलता था। So once again, I bow down to Sir Shri Takht Singh Ji and I request everybody. मैंने तो बहुत थोड़ा अभी प्रेजेंटेशन में डाला है because I have to cover up a lot of things. But आप सब, I request the schools also to take initiatives to raise these topics in front of children, make such kind of opportunities available to the children so that they research, they talk, and they have the platform to share about our heritage. Because हम हमारे heritage को अगर अच्छे से जानेंगे तो ही हम हमारे फ्यूचर का जो फाउंडेशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। Next on my list is Maharaja Sir Shri Bhavsi Ji. Again, I bow down to him. Colonel Maharaja Raul Sir Shri Bhavsi Ji II, Takht Singh Ji, the son of Takht Singh Ji, was the Maharaja of the Gohil dynasty who ruled over Bhavnagar state in the western India from 1896 until 1909. So 1919. So भावसी जी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है भावनगर की डेवलपमेंट में, बिकॉज भावनगर को जब तख्त सिंह जी, उनके बाद भावसी जी, इन सब ने अपना अपना इतना कंट्रीब्यूशन और विजनरी थे ये लोग कि भावनगर को इतनी अच्छी अच्छी चीजें इन लोगों ने दी हैं इन टर्म्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स आप कहें, इन टर्म्स ऑफ आप लेगेसी कहें, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज कहें, इन टर्म्स ऑफ कल्चर कहें, बिकॉज भावनगर का इतिहास बहुत ही ब्यूटीफुल। फ्रॉम हिज सेकंड मैरिज ही हैड सन कृष्ण कुमार सिंह जी। ये सब नाम बच्चों ने सुने, जाने पहचाने नाम है, बिकॉज काफी सारी चीजें भावनगर में आपको इनके नाम की मिलेंगी। तो ये नाम कुछ अनजाने नाम नहीं है, पर हम सिर्फ इनको नाम से जानते हैं, इनके काम से अभी हमको बहुत पहचान नहीं है, बिकॉज हमने इनके बारे में रिसर्च नहीं की है। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे का सेलिब्रेशन है, इसका मेन मोटिव यही है कि हम इन चीजों की अवेयरनेस फैलाएं, ताकि जो हमारे राजा महाराजा, जो दूरदृष्टि थी उनकी, जो उनका लॉन्ग विजन था, वो कहीं ना कहीं अटक रहा है, बिकॉज कि हम उनके विजन से, हमको उनके विजन से पहचान ही नहीं है। अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उनके विजन को समझ पाएंगे और इस विजन को हम आगे ले जा पाएंगे। तो यही हमारा छोटा सा प्रयास है कि आप जो बच्चे, आप जो सब हमें सुन रहे हैं, वो भावनगर के इतिहास को जाने, पहचाने, उनका गर्व लें और उनको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। भावसी जी had two wives, देव कुंवरबा एंड नंद कुंवरबा, और कृष्ण कुमार सिंह जी उनके बेटे थे, जिन्होंने भावनगर को जहाँ से भावसी जी ने छोड़ा वहां से उन्होंने लिया और उसको आगे बढ़ाने की बहुत अच्छी कोशिश की। Bhavsi ji and his wife raised a private Bhavnagar War Hospital in 1916 from their personal funds. ये भी बहुत जानने लायक बात है कि भावनगर वॉर हॉस्पिटल ये लोग चला रहे थे और अपने खुद के फंड से, they never asked funds from anybody, for treatment of the injured soldiers serving British Army in the First World War. जो ब्रिटिश आर्मी सर्व कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी ट्रीटमेंट के लिए भावनगर में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, एक वॉर हॉस्पिटल का, जिसको भावसी जी और उनकी वाइफ चलाते थे अपने पैसे से। आप सोचिए कितनी अच्छी बात है और कितना अच्छा सोसाइटी की तरफ इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब जानने के लिए हमको भावनगर के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के इन बातों को शेयर करना पड़ेगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इसकी गरिमा और इसका प्राइड समझ सके। ही वॉज, भावसी जी जो थे वो डिस्टिंग्विश स्कॉलर थे, जिनके पास बहुत मतलब उनको कला में बहुत सारी रुचि थी और एक बहुत अच्छी चीज भी उन्होंने बनाई थी। ही कंपोज्ड 4 पार्ट्स ऑफ संगीत माला। संगीत माला के 4 भाग उन्होंने बनाए थे। अ ट्रीटीज ऑन द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन प्लांट्स। ये जो संगीत माला थी ये खास मेडिसिनल प्लांट्स में उनका उपयोग किया जाता था और इन्होंने एक पब्लिकेशन भी किया था जो इंडियन आयुर्वेदिक फार्मेसी में रिलीज हुआ था। तो
तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि संगीत का दवा में जो असर है, जो आयुर्वेद में जो असर है, उसके लिए उन्होंने एक संगीत माला बनाई थी। एंड वी ऑल नो दैट म्यूजिक हैज इट्स ओन इफेक्ट। तो दवा के साथ संगीत को डालकर इन्होंने जो इतना अच्छा रिसर्च किया है इंडियन प्लांट्स पे, कि वो भी बहुत सराहनीय है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में, आपको जो भी चीज इस प्रेजेंटेशन में अच्छी लगे अंडरलाइन कीजिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, और थोड़ा डीप डाउन करके रिसर्च कीजिए। अगर आपको ये जानना है कि ये संगीत माला कहाँ है, कैसे बनी थी, का किसका क्या डिटेल्स है, डीप डाउन इनटू इट, यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिटेल्स, और आप चकाचौंध रह जाओगे जानकर कि ये सारी धरोहर हमारे पास है और हमें पता ही नहीं है। महाराजा रावल सर कृष्ण कुमार सिंह जी, इनका नाम तो मेरे ख्याल से सब जानते हैं, बिकॉज काफी जगह पर हमने पढ़ा है, काफी जगहों पर इनके नाम की तख्तियां भी लगी हुई हैं, जो हमने देखी भी है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ही बहुत 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 सराहनीय है। कर्नल महाराजा रावल सर श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, भाव सिंह जी is an Indian king and politician, the last Maharaja of Mughal dynasty who ruled the Bhavnagar state from 1919 to 1948. इनके इसके बाद क्या हुआ कि जो राजा रजवाड़े थे, इनको अपना जो गवर्नेंस था वो गवर्नमेंट को सौंप देना पड़ा। और बहुत प्राइड की बात है कि कृष्ण कुमार सिंह जी पूरे इंडिया में फर्स्ट किंग थे जिन्होंने अपना राजपाट गवर्नमेंट को समर्पित कर दिया। बहुत ही बड़ी बात है, इसके लिए भी मैं इनका अभिवादन करना चाहूंगी, बिकॉज बहुत इजी नहीं होता अपना राजपाट गवर्नमेंट को दे देना। इन्होंने बिना सोचे, बिना कुछ एक पल की देरी किए बगैर इन्होंने सब कुछ गवर्नमेंट को दे दिया, ताकि एक अच्छा शासन डेवलप हो सके हमारे पूरे पूरे राष्ट्र हिंदुस्तान में। ये पहल बहुत बड़ी थी और बहुत सराहनीय भी थी। कृष्ण कुमार सिंह जी married to Maharani Shri Vijaya Kuvarba Sahib. Kumar Singh ji became among the first Indian monarch to accede the dominion of India in 1947. जैसे मैंने बताया कि अपना पूरा राजपाट इन्होंने, he left everything, he gave it to the government, और ये बहुत बड़ा contribution था, because तब इंडिया को आजादी मिली थी और इंडिया एक नई रचना करने जा रहा था। अगर तब राजा रजवाड़े इस बात के लिए सहमत नहीं होते तो इतनी अच्छी डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो सकती। तो ये बहुत बहुत बड़ा स्टेप था श्री महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का, कि वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने बिना कुछ बात किए, बिना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए अपना सब कुछ दे दिया। सो हैट्स ऑफ, एंड फिर से शत प्रणाम महाराणा महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को। ही सर्व, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे, वो गवर्नर ऑफ मद्रास भी रह चुके हैं। ही मर्ज भावनगर इनटू द स्टेट ऑफ काठियावाड़। भावनगर जो स्टेट था उसको काठियावाड़ के साथ मर्ज कर दिया, बिकॉज उसको वो बहुत देख रहे थे, इसलिए मर्जिंग वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, तो उन्होंने मर्ज कर दिया। After handover rule of Bhavnagar state to Sardar Vallabhbhai Patel as the part of Indian Union, and the Bhavnagar is the first state which joined Indian Union. मतलब अगर आप ये फर्स्ट वर्ड पढ़ेंगे ना तो भावनगर बहुत सारी चीजों में फर्स्ट रह चुका है। और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं कि भावनगर ने जितना उसका दूरदृष्टि था, जितना उसका दूरदृष्टि आज है, वो सालों पहले के राजा अपने विजन में देख चुके हैं, अपने विजन में उस चीज़ों को कर चुके हैं। और जो भावनगर में आज अंडरग्राउंड गटर्स है, जो काफी सारी सिटीज में गुजरात में आज भी नहीं है, ये एक बहुत 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 विजनरी स्टेप था। अंडरग्राउंड गटर्स न होती, अगर तब न बनाई गई होती, तो आज कितनी विकट परिस्थिति होती। आज राजकोट भी आप देख रहे हो कि स्टिल अंडर गटर्स नहीं है, तो वो सिटी कहीं ना कहीं आपको आज भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अंडर डेवलप है, चाहे कितना भी फिजिकली डेवलप हो। और आप इस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमारी भावनगर सिटी में आप कहीं भी गटर्स ओपन नहीं देखेंगे, ऑल आर अंडरग्राउंड। और ये सोच सालों पहले, जब इतना डेवलपमेंट भी नहीं था, तभी हमारे राजाओं के पास थी, और उन्होंने इस बात का सोचा कि मेरी प्रजा को, जो मेरे लोग मेरे शहर में रहते हैं, उनको कितनी तकलीफ होगी, तो उन्होंने इस चीज को पहले ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके भावनगर को एक अच्छा सिटी बनाने का प्रयास किया।
I will come back to the questions, dear children. Let me finish my presentation and I will answer to all your queries. महाराजा रावल सर श्री वीरभद्र सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी कृष्ण कुमार सिंह जी के बेटे थे, who succeeded as Maharaja of Bhavnagar. He was the elder son of Maharaja Krishna Kumar Singh ji and Vijay Kumar Bhav. He was a PhD in social anthropology. तो वो भी इतने पढ़े लिखे, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत है भावनगर में। और ये सारे जो राजा थे, ये आर्ट, नेचर, कल्चर के लवर थे, इसीलिए भावनगर को कला नगरी कहा जाता है। अब थोड़ी भावनगर की टूरिस्ट जो जगह है, जो जिनको हम कहते हैं कि भावनगर की यात्रा, तो आज हम थोड़ा सा वो करेंगे। उनके थोड़े थोड़े जो अच्छे पॉइंट्स हैं या थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है, डेफिनेटली वो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो आप भी बहुत प्राइड और बहुत प्राउड से आज ये सारी चीजें देखिए। और मैंने थोड़ा बहुत ही रिसर्च इसमें डाला है, पर आप ज्यादा रिसर्च भी करके एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। एंड वी विल बी वेरी हैप्पी अगर आप ये प्रोजेक्ट हमको भी सबमिट करें थ्रू एनी मीडियम। द ग्रुप इज देयर। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाकर हमको सबमिट करना चाहते हैं, डेफिनेटली हम बहुत प्राइड से वो प्रोजेक्ट को हमारे सोशल मीडिया पे डेफिनेटली प्लेटफॉर्म करेंगे, शोकेस करेंगे। तो चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट कि कोई भी चीज आपको इस प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती है, मेक अ प्रोजेक्ट, मेक अ डॉक्यूमेंट्री। ऐसा हो तो जो जान पहचान वाले लोग हैं इस धरोहर के, उनका इंटरव्यूज लीजिए और भावनगर के इस हेरिटेज को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नीलमबाग पैलेस, जहाँ पे आज हम यहाँ पर बैठे हैं और यहीं से मैं ये सेमिनार वेबिनार कर रही हूँ, तो बहुत ही सुंदर जगह है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। The city of Bhavnagar is located in the Saurashtra region of Gujarat. In the heart of this bustling urban city is the beautiful Neelambag Palace Hotel. So beautiful, बहुत ही सुंदर होटल और नीलमबाग पैलेस है। ग्रीनरी आप देखिए, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, जब भी मैं यहाँ पर पैलेस में आती हूँ, मैं देखती हूँ इतने सालों पहले का कंस्ट्रक्शन और इतना स्ट्रॉन्ग। आज हम बिल्डिंग जहाँ पर हम रहते हैं, वो बिल्डिंग का भविष्य हम 50 साल भी नहीं देखते। और ये बिल्डिंग्स ये जो मॉन्यूमेंट्स है, ये जो हमारी हेरिटेज है, ये 100 साल से ऐसे खड़ी है। और यहाँ पर आप कील भी अगर ठोकना चाहे ना, तो उसके लिए आपको ड्रिल और अलग अलग मशीनरी लगेंगी, वो हैमर से तो आप कर भी नहीं सकते। तो इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, इतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स, ब्यूटीफुल। एक टूर भी आप अरेंज कर सकते हो, पोस्ट पैंडेमिक आप एक टूर भी अरेंज कर सकते हो। ऐसी नेशनल जो अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, उनकी एक टूर भी आप अरेंज कर सकते हो, ताकि आप डिटेल में इसको स्टडी कर सके। सो इफ यू आर टेकिंग योर करियर एज एन आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का, तो आप बेसिकली आकर इन सब चीजों को स्टडी कीजिए। बिकॉज सालों पहले जब आर्किटेक्चर इतना नहीं था, जितना और इतना डेवलपमेंट हमारे पास नहीं था, तभी ऐसी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स, ऐसे सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। In the year of 1879, Maharaja Sahib Takht Singh Ji of Bhavnagar commissioned the German architect Sims to design the Neelambag Palace for the generations that live here. तो 1879 में ये इतना सुंदर नीलमबाग पैलेस बनाया गया था, जो सर श्री तख्त सिंह जी ने बनाया था। और आज भी आप उसको देखेंगे, इतने सालों बाद, 100-200 सालों बाद, फिर भी आपको इसके बिल्डिंग की दीवारें, ये सब ऐसा ही लगेगा जैसे नया है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये भी बहुत देखने लायक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली एक टूर भी आप अरेंज कर सकते हो। An imposing राजूला स्टोन स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है पिलर्स में, वो सब राजूला स्टोन स्ट्रक्चर है। द पैलेस वाज कंस्ट्रक्टेड विद इन्फ्लुएंसेस ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो तब जब था ये जो दौर है, जब कॉलोनियल बहुत सब कुछ चल रहा था, तो आप इस आर्किटेक्चर में उसकी भी झलक आप देख पाओगे। तो स्टडी अगर आप करना चाहते हो, कोई भी करियर आप सिलेक्ट करो, आप अगर लिटरेचर सिलेक्ट करते हो तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है आपको आने के लिए। अगर आप आर्किटेक्चर सिलेक्ट करते हो, सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग या कुछ भी, आप एक दौर यहाँ पर लगाएंगे, एक चक्कर आप यहाँ पर लगाएंगे, सुबह से शाम तक सारी चीजों की स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें आपको किताबी नॉलेज कभी नहीं दे पाएगा।
सो आई रिक्वेस्ट एक टूर अरेंज कीजिए, डेफिनेटली इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए, एक प्रोजेक्ट वर्क बनाइए और डेफिनेटली हमें सबमिट कीजिए। Nilambag is a unique amalgamation of regal grandeur and functional magnificence. तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, ग्रीनरी, लश ग्रीन ट्रीज, एयरी, यहाँ बिल्कुल कहीं पर भी आप बैठो, there is no need of a fan at least. This glorious relic of the opulent times of Maharajas and Maharanis was the home of the Gohil clan. Nilambag Palace was originally built by Maharaja Takht Singh Ji for his son Yuvraj Sahib Bhav Singh Ji II. तो उनके लिए भाव सिंह जी टू के लिए ये बनाया गया था। तख्त सिंह जी ने खुद बनवाया था ये पैलेस, नीलमबाग पैलेस, जहाँ पर आज भी जो ये रॉयल फैमिली है वो रहती है। When India became independent in 1947, Maharaja Krishna Kumar Singh Ji became the first Indian ruler to hand over his kingdom and join sovereign India. जैसे मैंने बताया, कृष्ण कुमार सिंह जी पहले राजा थे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपना राजपाट सौंप दिया ताकि भारतवर्ष में प्रगति हो सके। In the year 1984, the palace was converted into a heritage hotel. आज जहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये पैलेस को कन्वर्ट किया गया हेरिटेज होटल में और आज इसे एक हेरिटेज होटल प्रॉपर्टी के तौर से जाना जाता है। और एक ये हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट तो डेफिनेटली है, बिकॉज ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, आप नीचे पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कितना यूनिक और कितना ब्यूटीफुल। दूसरा, भावनगर का प्राइड मैं कहूंगी, बिकॉज इसका सिचुएशन जो है, इसका जो लोकेशन है वो थोड़ा हिल के ऊपर है, तख्तेश्वर टेम्पल। आप उसको अगर तख्तेश्वर टेम्पल पे आप जाके खड़े रहोगे ना, आप पूरा भावनगर सिटी का दर्शन वहां से कर सकते हो। तो इतनी ब्यूटी, सेरीन ब्यूटी, अगर आप शाम के वक्त पे 6 बजे के आसपास अगर आप वहां पे जाके किसी स्टोन पे या किसी बैठक पे जाके बैठेंगे, भगवान शिव के दर्शन करके आप भावनगर का लुत्फ उठा सकते हैं, भावनगर की ब्यूटी का। थोड़े से हिल पर थोड़े से सीढ़ियां आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और ब्यूटीफुल मंदिर और ब्यूटीफुल सीनरी, नेचुरल सीनरी, जिसके लिए हम हमेशा दूर दूर जगहों पर जाते हैं। We go to places like Kashmir, we go to places like Ooty, we go to places like on any other hill station and we click pictures, and that serenic beauty is there in our own city, Bhavnagar. आप एक बार जाकर देखिए, ये जो मंदिर है ये इतना पुराना है पर आज भी उतना ही नया लगता है और इसकी जो ब्यूटी है आप खुद वहां जाकर ही महसूस कर सकते हैं। तो यंगस्टर्स, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन सारे जो हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में लोगों से बातें कीजिए। आप खुद जाइए, लोगों को प्रेरित करें जाए, और दूसरा, ये सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसका प्रेजर्वेशन करें। यंगस्टर्स जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बट वहाँ पे थोड़ी गंदगी भी करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सारी चीजें, बिकॉज ये हमारी धरोहर है, अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा तो कल की जनरेशन क्या रखेगी। मेरे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो मेरी जवाबदारी है कि मैं मेरे घर को साफ सुथरा सुरक्षित रखूं। तो यंगस्टर्स, आप खुद जाइए तख्तेश्वर टेम्पल में, खुद भावनगर की ब्यूटी को एक्सप्लोर कीजिए और इतना ध्यान रखिए कि आप इनको गंदा ना। दूसरों की बात हम बाद में करेंगे, पर आप एक प्लेज कीजिए कि whenever I will visit any of my heritage places, I will take care of that property. I will not spoil it. I will not put any garbage. I will not write on the walls. I will not touch anything or spoil anything. I think इतना contribution भी अगर youngsters करें तो it's beautiful. So something about Taksheshwar temple I would like to say. Situated on the hillock in the center of the city. आप जब खुद वहां पे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यू आर इन द सेंटर ऑफ भावनगर सिटी। आप वहां पे खड़े रह के पूरे भावनगर का दर्शन कर सकते हैं। Is the landmark of Shiva temple constructed way back in 1893. Yes, you have heard it right. 1893 में बनाया गया ये टेम्पल आज भी उतना ही फ्रेश है। तो सोचिए कि कैसी चीजें इसने इस्तेमाल की होगी, कैसी कारीगरी की होगी, कितना लॉन्ग विजन रखा होगा। एंड इट इज नेम्ड
after its patron Takht Singh जी, जो हमारे राजा थे तख्त सिंह जी, उनके पीछे इस मंदिर का नाम रखा गया है तख्तेश्वर टेम्पल. The entire area of the temple imparts holistic healing while giving the devotees of feeling of tranquility and attainment with God. मतलब आप ब्यूटी भी एंजॉय कर सकते हो, नेचुरल सीनरी भी. यहाँ पे जो नीचे आप पिक्चर देख रहे हो वो ऊपर से लिया गया पिक्चर है, जहाँ पर तख्तेश्वर टेम्पल है और उसके आसपास पूरा भावनगर सिटी. तो ये खुद एक्सपीरियंस करने जैसी चीज है, पिक्चर से इसकी ब्यूटी नहीं पता चलेगी. तो एक बार जाइए, इसको इसको एक्सप्लोर कीजिए. बट अगेन, ड्यू टू दिस पेंडेमिक, आई विल रिक्वेस्ट कि आप सारे जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के, उनका ध्यान रखिए. Takteshwar temple is completely made of white marble in the Gujarati style of architecture. ये पूरा मंदिर जो गुजराती स्टाइल है उससे बनाया गया है, supported with 18 ornately carved pillars. आप अगर उसको स्टडी करेंगे अंदर जाके तो आपको पता चलेगा जो पिलर्स हैं 18 पिलर्स हैं और ब्यूटीफुल पिलर्स हैं. और ये लॉर्ड शिवा का मंदिर है जहाँ पर शिव जी विराजते हैं. त्रिनेत्र शिव जी जिनको जानते हैं पहचानते हैं वो वहाँ पर विराजते हैं. एक नंदी गाय भी है वहाँ पर, बिकॉज शिव जी का मंदिर उसके बगैर अधूरा है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल. आप जब मंदिर को जाएं और मंदिर के दर्शन करें तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, इसको भी स्टडी कीजिए. जो पिलर्स हैं वो भी कितनी खूबसूरती से इनकी कारीगरी क्रेविंग्स किया गया है कि आप बहुत बहुत मजा आएगा. The Takteshwar temple witnesses about thousands of tourists and devotees from various corners of Gujarat. तो ये जो तख्तेश्वर टेम्पल है उसको हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं. और हम अगर भावनगर में रहकर इसके दर्शन नहीं कर पाए तो आई थिंक वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. सो यंगस्टर्स, कॉफी कल्चर में हम जाते हैं, कॉफी शॉप्स में हम जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं, डेफिनेटली एंजॉय करते हैं. बट भावनगर की इस हेरिटेज को भी एक्सप्लोर करना हमारी ड्यूटी बनता है. तो एक संडे या एक सैटरडे डेफिनेटली भावनगर हेरिटेज टूरिज्म के नाम. तख्तेश्वर टेम्पल इज पर्टिकुलरली क्राउडेड ड्यूरिंग शिवरात्रि. शिवरात्रि में इसका बहुत महत्व होता है बिकॉज ये शिव जी का मंदिर है और इसकी इतने सालों पुराना मंदिर है. तो अभी ऐसा माना भी जाता है कि इसमें भगवान स्वयं रहते हैं. बिकॉज एक टाइम होने के बाद ऐसा माना जाता है कि इतनी पूजा अर्चना हो चुकी होती है कि अब भगवान उसमें बस ही जाते हैं. So every year, more than thousands of people climb the staircase for this temple, and I request everybody आप खुद भी इसकी मुलाकात जरूर से लें. Next is the गंगा देवी. ये पिक्चर देख के ही ऐसा लगता है कि कहीं मैं ताजमहल तो नहीं देख रही, बिकॉज इसका जो लुक है वो डेफिनेटली ऐसा है. और मैं डेफिनेटली ये बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि गंगा देवी जब मैं रिसर्च कर रही थी तब मुझे पता चला. सो आई ऑल्सो एम एम्बेरेस्ड, आई फील अशेम्ड कि भावनगर में रहते हुए मुझे भी गंगा देवी के बारे में नहीं पता था. बट मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली कि अगर मुझे नहीं पता था, मैंने जाना और आप तक पहुंचाया. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको जाने और इसको आगे पहुंचाएं. तो गंगा देवी अगर आप देखेंगे लुक में भी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं ताजमहल तो नहीं देख रही. तो इसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो ताजमहल से बिल्कुल मिलता जुलता है. गंगा देवी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा जलिया तालाब. तो वहां पर एक छोटा सा तालाब को गंगा जलिया तालाब भी कहा जाता है. उसके पास ही बिल्कुल, मैं गंगा जलिया तालाब बहुत बार उस रास्ते से निकल चुकी हूँ पर मुझे पता ही नहीं था कि गंगा देवी जैसा कुछ है वहां पर. तो अब मैंने जब ये रिसर्च कर रही थी तब पता चला. एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक आउट टाइम एंड विजिट दैट प्लेस बिकॉज आई हैवंट विजिटेड दैट प्लेस. बट पढ़ने के बाद मुझे बहुत रुचि आई कि इतनी ब्यूटीफुल जगह है और मैंने देखी ही नहीं है. अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो रिसर्च कीजिए, टाइम निकालिए और डेफिनेटली इस जगह को विजिट कीजिए. This place is a historical built by English architecture with an order of Maharaja Takht Singh Ji in 1875 AD. 1875 AD में इसका जो है गठन किया गया था, इसको बनाया गया था. King Takht Singh Ji built this monument in the memory of her loving queen who died during childbirth. तो इसकी जो हिस्ट्री है वो भी थोड़ी सिमिलर है कि आज इसको बनाया गया था, जब ताजमहल को बनाया गया था इट वाज in the remembrance of Mumtaz, and even this monument is built in the remembrance of Takht Singh Ji's loving wife who died during childbirth.
The renowned artist and the principal of JJ College of Arts, Mumbai, at that time was invited to design this monument. ये monument को design करने के लिए इनको बुलाया गया था और ये monument को design किया गया था. This monument is built with white marbles. जैसे मैंने picture में आपको दिखाया, अभी भी आपको दिख रहा है कि ये white marble के जैसे है. The architectural style of the monument is a synthesis of Mughal and Rajput and looks like a mini Taj Mahal. इसका जो शेप है डोम शेप, जनरली मुगल डायनेस्टी में ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए जिनका शेप डोम होता था. तो ये थोड़ा सा उस लुक को देता है और इसको हम मिनी ताजमहल भी कहते हैं. This two-storied structure was built as the centerpiece of that time and गंगा जरिया तालाब के ऊपर जो इसको बनाया गया था, ये टू स्टोरीज में है ये बिल्डिंग और ब्यूटिफुली सेंटर ऑफ द सिटी बनाया गया था ताकि यहाँ से भी पूरी सिटी का जो है आप दर्शन कर सकते हो. नेक्स्ट इज विक्टोरिया पार्क. विक्टोरिया पार्क के बारे में थोड़ा सा मैं पहले कहना चाहूंगी बिफोर उसकी मैं ब्यूटी और उसकी हिस्ट्री शेयर करूँ. यंगस्टर्स बहुत जाते हैं विक्टोरिया पार्क और विक्टोरिया पार्क को गंदा भी बहुत करते हैं बिकॉज पिकनिक स्पॉट है. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि जब भी आप कोई भी जगह, अगर वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है या नहीं है, but being responsible citizens, responsible future of India, it is our duty to protect and keep the things and our surroundings clean. ये मैसेज आप अंडरलाइन कर लीजिए that अगर मैं enjoy करने भी जा रही हूँ या जा रहा हूँ, my enjoyment should not damage any public property. गंदगी सबसे पहले हमें रोकनी होगी और उस जगह की सुरक्षा जब तक मैं वहां पर हूँ मैं ध्यान रखूंगी या रखूंगा कि उस जगह को कोई गंदा ना करे या खराब ना. तो ये सारी चीजें डेफिनेटली बहुत जरूरी है. विक्टोरिया पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और मैं विक्टोरिया पार्क के बिल्कुल सामने ही रहती हूँ. तो एवरी सिंगल डे आई विजिट दैट प्लेस फ्रॉम आउटसाइड. तो वही मेरा रास्ता है और बहुत ही ब्यूटीफुल उसका जो एंट्रेंस है जहाँ पे जो लायंस हैं बहुत ब्यूटीफुल लगता है. मैं काफी बार अंदर भी जा चुकी हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं. अंदर भी बहुत ब्यूटी है क्योंकि ट्रीज भी इतने सारे हैं. तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं. It is hard to believe that within few minutes from the teeming Bhavnagar, one can be surrounded by this 2 square kilometer protected forest. 2 square kilometers में ये पूरा जो forest है ये बना है on the edges of गौरी शंकर लेक. गौरी शंकर लेक बोट तालाब जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं बोट तालाब के नाम से, काफी आप सब गए भी होंगे, मैं भी गई हूँ बिकॉज बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है और अभी उसको जब रीडेवलप किया गया उसके बाद तो उसकी ब्यूटी में 4 चांद लग गए हैं. तो बस उसके बिल्कुल किनारे ही विक्टोरिया पार्क है. एक एंड आता है जो वाटर टैंक हमारी है पानी की टंकी के साइड और दूसरा आता है जहाँ पे बोट आप जा सकते हैं. तो ये 2 किलोमीटर का जो एरिया है 1888 में इट वाज बिल्ट एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय मिस्टर डॉक्टर सिंह फॉर महाराजा तख्त सिंह जी. तो आप सोचिए तख्त सिंह जी ने कितना कुछ भावनगर को दिया. अगर तख्तेश्वर टेम्पल नहीं होता, गंगा देवी नहीं होती, अगर ये विक्टोरिया पार्क नहीं होता तो भावनगर में क्या होता. तो कितना कुछ इन्होंने हमें दिया है. अब हमारी जवाबदारी है कि हम इसको आगे ले जाएं, इसके बारे में प्राइड लें और इसकी सुरक्षा भी करें. इसमें बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत कुछ है इस विक्टोरिया पार्क में एक्सप्लोर करने के लिए. पूरा एक दिन तो डेफिनेटली कम पड़ेगा. आप सेगमेंटाइज करके आप उसको डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं. Trek through the lush green forest and if lucky here one can spot birds. यहाँ पे birds ऐसे migratory birds आते हैं various parts of the world से कि जिनके नाम भी बहुत नए होंगे काफी लोगों के लिए, जैसे बुलबुल्स, green beaters, robins, tailor birds, silver bees, peacocks, sunbirds, spotted owlets, shikara, rose ring, parakeets, common peafowl and animals like nilgiris and foxes. ये सारे इसमें रहते हैं और काफी माइग्रेटेड भी हैं कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं कि जो दूसरी कंट्री या दूसरे देश से हमारे सिटी में आते हैं. The biggest species found in this park are Lubiminoshi and Paoshi. ये दो नए वर्ड्स हैं. ये प्लांट्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, जिनके स्पीशीज यहाँ पे मिलते हैं. There are 223 bird species, 15
मैमिलियन स्पीशीज एंड 20 रेप्टाइल स्पीशीज। तो ये जो पेज है इस प्रेजेंटेशन का, इस पर भी काफी सारी रिसर्च आप कर सकते हो, काफी सारा प्रोजेक्ट वर्क आप कर सकते हो, काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आप बना सकते हो। Whenever you get chance, you can project it, you can give it to us, we will showcase it. Inside the park, there are some nurseries where one can find some unique variety of plants. मतलब विक्टोरिया पार्क अपने आप में एक स्टडी हब कहा जा सकता है रिसर्च के लिए, कि आप एक बार अंदर जाएं, आप देखें कितना कुछ, कितना ब्यूटीफुल अंदर से भी है। बाहर से तो खैर है ही विक्टोरिया पार्क, बट अंदर से भी उतना ही ब्यूटीफुल है। There are two water bodies inside. दो वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर, गौरी शंकर लेक एंड कृष्ण कुंज लेक। वो बहुत सूखे रहते हैं ज्यादा समय, बिकॉज भावनगर में इतनी बारिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो काफी टाइम वो सूखे रहते हैं। पर जब भी बारिश होती है तो इन लेक्स को हम जीवंत देख सकते हैं। और इसी लेक में ज्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। Recently, a picnic site is developed inside core area of the park with many benches, picnic tables and concrete block pavements. अभी recently ही वहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट भी बनाया गया है, तो आप उस पिकनिक स्पॉट को एंजॉय कर सकते हैं, पर ध्यान रखें उस जगह को साफ सुथरा और मेंटेन भी रखें। और यहाँ पे मल्टीपल अकोमोडेशन भी अवेलेबल हैं, ताकि टूरिस्ट जो है वो आके इस जगह को एक्सप्लोर कर सकें। ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल वाटर लॉक गेट है। ये दूसरी ऐसी चीज है जो मैंने भावनगर में नहीं देखी है, और मैं चाहती हूँ, मैं खुद थोड़ा सा रिसर्च भी करना चाहती हूँ इसके बारे में, और आपको भी बोलूंगी आप भी रिसर्च कीजिएगा। भावनगर वाटर लॉक गेट, located in the city dockyard, waterlock gate was constructed 100 years ago. 100 साल पहले ये बनाया गया था, और इसके पीछे की सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। Years ago when it was built, it was done up with an intention to control water level in order to ensure the movement of boats and ships even during the low tide phase. मतलब इसको बनाया इस सोच से गया था कि जब लो टाइड हो तभी भी जो पानी का संतुलन है वो बना रहे, ताकि जो बोटर्स हैं जिनको बोट से बिजनेस करना पड़ रहा है आने जाने के लिए, उनको दिक्कत ना हो। कितना अच्छा इंटेंशन 100 साल पहले, और आज हम 100 साल के बाद इसको जानते भी नहीं। Main idea of celebrating World Heritage Day is to raise awareness of these heritage properties. The old dock gate was built by the King of Bhavnagar state, but in current situation it's on working. On working मतलब it's on hold. अभी वो चल नहीं रहा है. It is not serving the purpose for what it was meant to be. Still it's worth a watch as the place and the system is. अभी ये चल नहीं रहा है, बट डेफिनेटली इसको जरूर से देखना, इस पर रिसर्च करना और इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना आपको फायदेमंद रहेगा, बिकॉज इसके पीछे की जो सोच है वो कितनी लॉन्ग विजन है, कितनी दूरदृष्टि है उसके अंदर, कि पानी का जो संतुलन है वो बना रहे, ताकि बोटर्स को दिक्कत ना हो जब लो टाइड हो, बिकॉज लो टाइड में यू कैन नॉट बोट हियर एंड। तो उसके लिए खास ये वाटर लॉकेट बनाया गया था। अभी ये काम नहीं कर रहा है, बट डेफिनेटली इसकी विजिट तो बनती है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप देख सकते हो, मैंने थोड़े भी पिक्चर्स लगाए हैं। विजिटर्स को डेफिनेटली इसके लिए परमिशन लगेगी ये देखने के लिए, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एज अ स्टूडेंट स्कूल्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब अपनी स्कूल की ट्रिप्स प्लान करते हो तो एजुकेशनल ट्रिप्स में ये सारी जगह प्लान करें, ताकि इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो हमारे बच्चे जान पाए और इस हिस्ट्री को आगे ले जाए। Next is the Barton Library. I had an opportunity to visit the Barton Library recently, and I was surprised to have a look at the collection of the books that this library has. Though the library is in not a good condition, because जैसे दूसरी प्रॉपर्टीज है हेरिटेज की, हमने खुद ने ही इसकी संभाल नहीं की है, तो अभी उसका उतना नहीं है, बट इसको हम रिवाइव कर सकते हैं यंगस्टर्स, बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, और ये इतना बड़ा मैसिव जगह है कि आप वहां पर जाकर खुद पढ़ भी सकते हैं, वहां पर फैसिलिटीज भी हैं, इसको हम रिवाइव कर सकते हैं। तो यंगस्टर्स से मैं कहूंगी कि आप हैव अ लुक एट दिस बार्टन लाइब्रेरी, लुक एट द स्ट्रक्चर। ये जो बिल्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हो, एक इनसाइड वाला पिक्चर, एक आउटसाइड वाला पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है इतने सालों पहले बनाया गया है, फिर भी आज इट इज स्टैंडिंग विथ प्राइड एट दीवानगंज।
तो इसका भी एक बार आप एक बार डेफिनेटली आप इसको विजिट कीजिए। थोड़ी डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज में सबसे पुरानी अगर आप कहेंगे तो ये बाटन लाइब्रेरी है। इट वाज सेट अप इन 1882, 100 साल से भी ज्यादा। और इसके पास 5,000 बुक्स का डोनेशन किया था छगन प्रसाद देसाई ने जब ये लाइब्रेरी शुरू की। मतलब आज अगर हम बात करें, बच्चों को रीडिंग बच्चे नहीं करते, फिजिकल बुक्स अभी तो सब लोग मोबाइल के अंदर दे हैव ऑल देयर आर्टिकल्स, दे रीड इट, बट जो फिजिकल बुक्स है आज की जनरेशन में मैं देखती हूँ कि बहुत कम है। उस टाइम में 100 साल से भी ज्यादा के टाइम में अ, हमारे राजा जो थे वो समझते थे कि पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे। इफ यू आर अ रीडर ओनली देन यू कैन बी अ लीडर। So that was so true, and Chagan Prasad Desai donated 5,000 books so that this library could start. This major institution is closely associated with the Chagan Prasad Desai Library and has special status on the cultural map of India. ये भी मैंने रिसर्च किया, तभी मैंने देखा था जो कल्चरल मैप आप देखेंगे ना गूगल पे, यू विल फाइंड दिस पाटन लाइब्रेरी। तो इतना रिच कल्चर हमारे पास है और हमने देखा ही नहीं है इसको, हमने जाना ही नहीं है, हम इसको पहचानते ही नहीं है, हम यहाँ पे जाते भी नहीं है। तो बच्चों मैं रिक्वेस्ट करूंगी, डेफिनेटली आप इस चीज को भी ध्यान में रखें। आज इस लाइब्रेरी में मोर देन 61,000 बुक्स हैं। 61,000 यू आर रीडिंग एंड हियरिंग इट वेरी राइट, दैट इन इंग्लिश, हिंदी और गुजराती की इतनी सारी। और कुछ किताबें तो इनके पास ऐसी है, पुरानी किताबें, कि जो मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते थे, हाथों से लिखी गई जो किताबें हैं, वो भी आज आपको मिलेगी। ये सारी म्यूजियम की चीजें हैं जो हमारे पास हमारी सिटी में है। क्यों ना हम उसको देखें, उसको समझें, उसको परखें और उसको आगे ले जाएं। 61,000 इज नॉट स्मॉल नंबर। आप बुक का नाम दीजिए उसके पास मिलेगी, आप बुक का नाम दीजिए उसके पास मिलेगी। लेट्स हैव अ लुक, लेट्स स्पेंड सम टाइम विजिटिंग बाटन लाइब्रेरी एंड हम पिक्चर्स, जब हम जाते हैं ना कोई भी जगह पर कॉफी कल्चर, तो पिक्चर सेल्फीज लगा के we post on social media. Let's run a drive when we visit our heritage property, take a selfie and put it on social media and talk loud about our heritage, our pride. तो इतना हम सब कर सकते हैं। Thousands of books, prize winning books आपको इसके अंदर मिलेगी। The history of the state is incomplete without the Barton Library. Barton Library अगर मैं इसमें नहीं शामिल करती तो हिस्ट्री जो थी भावनगर की वो बहुत ही इनकम्प्लीट रहती। तो Barton Library is worth a visit. Definitely इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है जैसे पहले थी। I think for that condition somewhere we all are responsible because अब लोग आते जाते नहीं है, और जब जगह में लोग का आना जाना कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो जगह थोड़ी सी बंजर हो जाती है। तो लेट्स रिवाइव दैट प्लेस। हर रोज नहीं जा सकते, महीने में एक बार तो कम से कम जा सकते हैं, 2 महीने में एक बार जा सकते हैं एटलीस्ट। गौरी शंकर लेक, एज जैसे मैंने बताया था, बोट तालाब जिसको बोलते हैं, जब मैं भावनगर में नई नई आई थी तब सबसे पहली जगह मैंने विजिट की थी वो बोट तालाब की। बिकॉज तब मुझे कहा गया था कि भावनगर में જોવા જેવું બહુ સરસ જગ્યા છે બોટ તળાવ, चलो जाइए। एंड आई वाज लाइक बोट तालाब, आई मीन बोट तालाब का क्या मतलब होता है? So the name actually is Gauri Shankar Lake, but somehow it is called as Bhor Talab. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। नेचुरल ब्यूटी अगर आप देखना चाहते हैं, इफ यू नॉट विजिटेड गौरी शंकर लेक, इट्स यूजलेस, योर लिस्ट इज इनकम्प्लीट। तो बहुत ही ब्यूटी है इसके अंदर, ह्यूज इन साइज एंड कोलोसल इन ब्यूटी। गौरी शंकर लेक आल्सो नोन एज भावनगर लेक, इसको भावनगर लेक भी कहा जाता है, was made in 1872. Oh my God! मैं जो भी चीजें आज बोल रही हूँ 100 साल से तो ज्यादा ही है उसकी उम्र, और फिर भी आज टिकी हुई है, खड़ी हुई है और हमको बुला रही है। As a water reservoir for general public on the edges of Victoria Park. Victoria Park के edges पे ये लेक जो है, इट्स एन आर्टिफिशियल लेक, बनाया हुआ लेक है कि भावनगर को पानी की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए एक लेक बनाया जाए जिसमें पानी रहे और पूरा भावनगर उस पानी को पा सके। तो आज भी हम बोट तालाब का ही पानी पीते हैं। टुडे द गौरी शंकर लेक अलोंग द एडजॉइनिंग बाल वाटिका, बहुत एक अच्छी बाल वाटिका भी है। मैं मेरे स्कूल के बच्चों को वहाँ पे काफी टाइम ले गई हूँ। एक छोटा सा म्यूजियम भी है वहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल एक एक्वेरियम भी है जो बच्चों को बहुत इंजॉय करता है। तो आप भी जाइए, एक्सप्लोर कीजिए इस भावनगर की ब्यूटी को, और आप मुझे याद करेंगे जब एक एक जगह पे आप जाएंगे। अब देखने का नजरिया बदल जाएगा। पहले अगर आप तख्तेश्वर गए होंगे तो वो कुछ अलग बात थी, पर अब जब आप जाएंगे तो आप अपनी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी का प्राइड लेके जाएंगे। तो वो दोनों चीजों में अलग आपका रिएक्शन है, आपकी फीलिंग्स है।
आपका जो दिल है वो अलग हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप हेरिटेज प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर करने के बाद उसको शेयर कीजिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। और ये जो गौरी शंकर लेक है इसके बीच में नर्सरीज भी हैं जहाँ पे 1 लाख ट्रीज हैं। 1 लाख ट्रीज विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर। 1 लाख ट्रीज को प्लांट करना, उसका ध्यान रखना, ओ माय गॉड। तो ये जो 1 लाख ट्रीज हैं इज अ बिग नंबर कि भावनगर को कितना ऑक्सीजन मिलता है इससे। तो ये सारी चीजें हमारे राजाओं ने, महाराजाओं ने हमारे लिए की। अब हमें इसे आगे ले जाना है। ये 1 लाख ट्रीज का जो फिगर है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? कि जब हमारा बर्थडे हो, लेट्स बाय अ प्लांट, लेट्स dig the earth and put that plant and let that plant grow into a tree. ऐसी जगहों पे आप जाइए, आप ट्री प्लांटेशन कैंप्स कर सकते हैं। जैसे मैं हर साल, मेरा एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, हम एवरी ईयर फ्रेंडशिप डे के दिन पर केपीएस स्कूल में जाकर ट्रीज प्लांट करते हैं। आई थिंक सिंस 7 years वी बीन डूइंग दिस। 25 ट्रीज, 50 ट्रीज, जितनी भी हम लोग जगह हो वहाँ पर हम करते हैं। तो आप लोग, बिकॉज केपीएस इज आवर स्कूल, सो वी फेल्ट कि उस जगह को ही डेवलप किया जाए। तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव आप ले सकते हो, ट्री प्लांटेशन कैंप कीजिए। और जो ट्री आप प्लांट कीजिए उसकी जिम्मेदारी भी आप कीजिए कि उसको पानी मिलता रहे। वो कैसा है उससे मिलिए, उससे दोस्ती कीजिए। तो ये 1 लाख ट्रीज कल 2 लाख में भी परिवर्तित हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो यही है मेरा पूरा उद्देश्य आज इस सेमिनार को करने का, कि आज अगर आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हो, आज जो पूरा प्रेजेंटेशन हमने देखा उसमें आप कोई भी इनिशिएटिव अगर आप लेते हो, ये मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आई विल कम टू द लास्ट स्लाइड। A beautiful natural lake located near King Bhausiji Mahal, a, a place for walk, evening leisure। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप शाम के टाइम पे वहाँ पे वॉक भी ले सकते हो। नेचुरल ब्रीज, हवा जो आती है ठंडी ठंडी, उसका भी आप एक लुत्फ उठा सकते हो। वहाँ प्लेस फॉर वर्शिप भी है, एक छोटा सा टेम्पल भी है, गौरी शंकर टेम्पल, उसकी भी विजिट आप कर सकते हो। एंड यू कैन हैव योर डे एट अ वंडरफुल थिंग। गांधी स्मृति, ये भी एक बहुत, मैं खुद गई हूँ बहुत टाइम गांधी स्मृति, बिकॉज मैंने काफी चीजें वहां से खरीदी भी है। पर जब मैं इसका रिसर्च कर रही थी तब मुझे थोड़ी और चीजों का पता चला जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। दैट इज, दिस इज द लास्ट, गांधी स्मृति इज द लास्ट स्लाइड, एंड देन आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स हाउ वी कैन प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर नेचुरल हेरिटेज। गांधी स्मृति एक मेमोरियल आर्टिफैक्ट है जो भावनगर में बनाया गया है, क्रेसेंट सर्कल पे ही है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। तो बहुत सुंदर उसका भी आर्किटेक्चर है। पर अगर आप देखोगे तो ब्यूटीफुली उसको बनाया गया है गांधी जी की याद में। ये गांधी स्मृति, स्मृति मीन्स रिमेम्बरेंस, तो गांधी जी की याद में इसको बनाया गया है। और ब्यूटीफुल है उसके अंदर की सारी कारीगरी। अगर आप देखोगे या उसमें जो चीजें मिलती हैं, जो चीजें हैं वो सारी भी हमारी हेरिटेज वाली हैं। तो आप एक बार डेफिनेटली, बिकॉज हमने काफी टाइम बच्चों का टूर भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव, तो आपको वो टूर भी कराएंगे और आप सारी चीजों को एक्सप्लोर करके उसको डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हैं। It's a two-storied memorial preserve a huge collection of books of Mahatma Gandhi on the first floor and the rare photographs associated to Mahatma Gandhi from his birth to death। सारे फोटोग्राफ्स आपको पूरी गैलरी मिलेगी वहां पर, उनके जन्म से लेके उनके डेथ तक सारे पिक्चर्स महात्मा गांधी के उसमें है। एक छोटा सा उन्होंने म्यूजियम बनाया है वहां पर, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो गांधी स्मृति में। वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी आपको मिलेगी विच होल्ड्स अ वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स दैट गांधी जी यूज्ड। बाटन लाइब्रेरी इज फाउंड, बाटन म्यूजियम जहाँ पे है, बाटन लाइब्रेरी नहीं, बाटन म्यूजियम है जो गांधी स्मृति के अंदर ही बनाया गया है। वहाँ पर भी आपको आर्टिफैक्ट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, रिलीजियस कार्विंग्स मिलेगी, जो नट कटर्स थे वो सब आपको मिलेंगे। जो नट कटर्स है वो मैंने खुद देखे थे वहां पर काफी टाइम पहले, तभी मुझे नॉलेज नहीं था कि मैं इसके बारे में इतने सालों बाद बात करूंगी। और वो सारे जो नट कटर्स हैं देखने लायक है उस बाटन म्यूजियम में। डेफिनेटली आप उसको विजिट कीजिए और उसके बारे में जानिए। खादी, जो भावनगर को गांधी जी ने, भावनगर को नहीं पूरे समग्र देश को जो गांधी जी की गिफ्ट है, वो खादी ग्राम उद्योग भी वहाँ पे चलता है और खादी के काफी सारे कपड़े मिलते हैं वहाँ पर। तो उससे हैंडीक्राफ्ट जो है हमारा बिजनेस, उसको भी चार चांद लगते हैं।
तो वो भी आप प्रमोट कर सकते हो। तो गांधी स्तूप इज ऑल्सो अ वंडरफुल 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 प्लेस टू विजिट। आप उसको, उसकी बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे बाहर से तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी बहुत, पत्थर उसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका बिल्डअप जो है वो भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। तो अब जब आप क्रेसेंट सर्कल से निकलेंगे तो गांधी स्तूप की तरफ नजर करेंगे तो उसका थोड़ा सा आपका जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज अब आपके दिमाग के अंदर वो है कि ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो कल्चर एंड हेरिटेज की बात अगर मैं करूँ, so first I'll stop sharing my screen. My presentation is here over about, I talked about the few kings of Bhavnagar who had contributed and the few places or heritage places. One important message to this medium I want to give to all my listeners, all my viewers is Bhavnagar is a city which has a lot of culture, lot of heritage. It is our responsibility to take it forward. So I request all the students and the schools also to conduct various programs wherein children get in touch with our roots. It is very important. We all are now, becoming modernized. We are accepting Western culture. Nothing wrong in that. वेस्टर्न कल्चर को डेफिनेटली अडेप्ट करना चाहिए, बट हमारे जो रूट्स हैं उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। So if as youngsters we are eating pizzas, I am not against eating pizzas, but हमारी जो रॉयल रेसिपीज हैं, जो हमारी रॉयल, जो हमारा बेसिक खान पान है, हम उसको क्यों भूल जा रहे हैं? योग जो देश को भारत ने दिया है उसको भूल के हम एरोबिक्स कर रहे हैं to lose weight, to stay fit. Why not choose yoga? Why not promote India? Why not promote our heritage? So please, dear listeners, dear students, thank you so much for listening to me, and thank you so much for being with me. And one humble request or appeal, whatever, you can take it. Please research about our culture and heritage and take it forward and visit all the places, all the heritage places in. Thank you so much. This is Harsha Ramaya signing off. Thank you so much. All the students who joined through Zoom will be getting their e-certificates. So kindly stay in the group itself. And whatever queries you have my WhatsApp number. You can message me in my personal number. So any questions anybody is having, I have 5-10 minutes more. Yes, Lubnashri, this seminar is recorded. You will find this live session on the Facebook page of Bhavnagar Heritage Preservation Society. If you type on Facebook Bhavnagar Heritage Preservation Society, you will find it. Also, I will be putting the YouTube link on the group so that it stays with you. So thank you so much, everybody. I will just say a quick hi to everybody who's joined in. And after that, I will आशका, अंजलि अंधारिया, अंजलि भट्ट, आस्था अंधारिया, श्रद्धा, भव्या, भूमि, भूमि मेहता, दिव्यानी, ध्वनि तलरेजा, दिव्या, हर्ष, हेतल, हिमाद्री, आराधना, जानवी, करण, किंजल, करीना, लिपिका, मानुष, लुब्नश्री, नियति, Priyanshi, Rajeshwari, Rajvi, Real Me also is one name. You can rename yourself so that I can name you. Riddhi, Ria, Samina, Vaibhav, Yagnadeep, Yash, Yashvi. Real Me is Nilesh Parmar. Hi, Nilesh. So I hope everybody enjoyed. And on behalf of World Heritage Day, Bhavnagar Heritage Preservation Society, Small Wonders and Parent Station, I thank everybody to be present.